Hello students, myself Rakesh Misra. I hope you are well. Here I am going to discuss about subject biology, class 11th, chapter 1, the living world. In previous video lecture, you have seen many topic that is related to your previous classes like 11th. Here I am going to talk about the biodiversity. In biodiversity chapter, you have seen what are the different methods by which we can decide the category of living being, the microscopic, macroscopic, on the basis of their food vegetation, on the basis of their mode of reproduction, on the basis of their living habitat. There are so many categories by which you can categorize the living being. But keep in mind, in this video lecture, we are going to discuss about the system of classification, why changing nowadays. Listen carefully. If system of classification are actually fixed, then it is clear that the number of living organisms are fixed. As you all know, number of living organisms is not fixed. In previous video lecture, you have seen in each and every years about 10,000 of new living species of organisms added in our biospheres. So the criteria, system of criteria for classification is changing each and every days. That will be discussed in this video lecture. So I will add the online class video along with this basic introduction, which will help you what I have learned and what I have gained and what the knowledge gained by other students in online class. If you are missing the online class, then don't worry, you are with the good channel, you are in the right school, then you will have no any opportunity to lose your any kinds of moments. Without delay timing, let back in online class and discuss each and every points which I have introduced you. Actually, the main motto of adding online class video is many students are actually blame that their internets and audio, video and many things are going to problem within the mid of video. So within the mid of online class. So if you are actually belong to that category of students, then don't miss this video channels, because this is totally free of cost. This is totally available for about 24 hours. YouTube video have no any fixed time, you can watch at night or during the day, but online class has a fixed time of period. Within the certain time of period, they will actually, I have actually finished overall 45 minutes of classes. That is begin at 10:25 am and end at 11:10 am. Within 10:25 to 11, our class period is 10:25 am. That is end with 11:10 am. Within this time of period, if you are missing the online class, then you can view the same video in YouTube video lecture daily as according to our update. According to our update, you will also gain the question that are basically asked by our students and your colleagues, your class fellows, and their basic replies that you will get and your class fellow will get, that explained by me, is very interesting. So no matter what you have missed in online class, no matter what you have missed in previous video lecture, the main matter is from today's onward, you have to regular yourself within me and within the video lecture, within the online classes. You have also prepared, this is my advice, you have also prepared the fair copy related to each and every topic. I will also provide you the note criteria and how to make the note and what are the important topic, what are the important book that may help to you. In the online class, I will also introduce you what are the various scope of biology in upcoming big examination like NEET, like JIPMER, like ANM, GNM and many things. Keep in mind. So related to video lecture, the main problem of students, they are actually confused what they missed in previous video lecture. No matter, without delay timing, let back in online class and discuss the main question. Our question is, why are system of classification are changing now and then?
Keep in mind that basic points of this question was asked and discussed in previous video lecture, but in this video lecture we will discuss and describe each and every topic. So without delay timing, let back in online class and describe our main points related to the question, why are system of classification changing now and then. This is very important question related to NCERT and may ask in the upcoming examination. Listen carefully. Our question is, why are system of classification changing now and then? Now and then. Listen carefully. इसका मतलब क्या होता है पहले हम समझा दे रहे हैं. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हर बार चेंज होते रहते हैं. क्यों? किसका सिस्टम? लिविंग बीइंग के क्लासिफिकेशन का सिस्टम. जैसे आप जानते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे एग्जिस्ट है. ठीक है, देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ. दे ऑल आर एक्चुअली नॉट जस्ट लाइक the mix up, they all are not immediately blend up. ऐसा नहीं कि वो आपस में मिले हुए हैं. उनकी कैटेगरी है, उनकी कैटेगरी है. कोई माइक्रोस्कोपिक है, कोई मैक्रोस्कोपिक है, कोई ऑर्थ्रोपोडा है, कोई एनिलिडा है. दिस कैटेगरी इज नोन एज क्लासिफिकेशन. जब आप किसी को ग्रुप बना देंगे तो उसी को क्लासिफिकेशन. जैसे अगर सपोज दैट आपके स्कूल में कोई आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, तो कोई छोटा बच्चा है, कोई बहुत बड़ा है, सबको एक क्लास में बैठाओगे तो अगर टेबल पढ़ाओगे तो 12 वाले बोर होंगे. अगर उसको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाओगे, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाओगे तो यूकेजी वाले बोर होंगे. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्लास बनाना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. तो ये क्लासिफिकेशन डेली चेंज होते रहते हैं, ये हर साल चेंज होते रहते हैं. रीजन क्या है? मैंने अभी बोला, हर साल न्यू लिविंग बीइंग एग्जिस्ट, न्यू लिविंग बीइंग डिस्कवर्ड होते रहेंगे. मैंने अभी बोला कि एवरी ईयर अबाउट 10,000 न्यू लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली डिस्कवर्ड. दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द फैक्ट व्हाई द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर चेंजिंग नाउ एंड देन. तो लिखेंगे कॉपी में, एज वी नो दैट एवरी ईयर. कुछ हिंट तो नोट कर लो कॉपी में. एज वी नो दैट in every year about 10,000 new species are added in our biodiversity, so that when we make the criteria for classification, this will change now and then in each and every year. This will change now and then in each and every year. जैसे आप क्राइटेरिया बना लिए कि आज 100 स्पीसीज को हमको ग्रुप करना है. सपोज दैट अगर आपके घर में 10 मेहमान आए हैं, ठीक है, ध्यान से सब लोग सुनेंगे. अगर आपके घर में 10 मेहमान आए हैं, 10 मेहमान के खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी है, पैसे का अरेंज करना है, चाहे मार्केट से चीजों का अरेंज करना है खाने पीने का, और आप मार्केट में पैसा लेकर के गए हैं 100 लोगों के लिए. तभी आपके पापा का कॉल आ गया, नहीं 100 लोगों का नहीं, 100 लोगों का मैनेज करना है, 100 लोगों का. तो आप क्या होंगे? पहली बार में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है ना, आपके पापा की गलती है. ठीक है, 5-10 मिनट बाद आप 100 लोगों के बजाय 150 लोगों का मैनेज कर रहे हैं. तब तक आपके मम्मी का कॉल आया, नहीं अब 85 लोगों का मैनेज करना है, 100 लोग तो आएंगे ही नहीं. अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं हो गए? फिर अभी कॉल आया कि नहीं 200 लोगों को मैनेज करना है, 300 लोगों को हर 5 मिनट पे कॉल आता रहे, तो आप क्या हो जाएंगे? फ्रस्ट्रेट कर जाएंगे. इसका मतलब आपका क्राइटेरिया, आपकी मेंटेलिटी अपने मेहमानों को लेकर के हमेशा बदलती रहती है. ठीक है, कब? जब आपका कोई चीज फिक्स नहीं होता है तब. क्लियर? इज इट क्लियर? हैंड रेज करके बताओ. चलो, वेरी गुड. सेम थिंग्स अप्लाइड ऑन आवर लिविंग बीइंग. लिविंग बीइंग के नंबर अगर 1.7 to 1.8 अगर फिक्स रहता तो ये क्राइटेरिया हम डिसाइड करके उनको डिवाइड कर देते. लेकिन हर साल 10,000 न्यू ऐड हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो है ही. दिक्कत क्या है? हम 1.7 to 1.8 के लिए क्राइटेरिया बनाते तभी 10,000 और आ जाते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम. फिर 10,000 हर साल आएंगे. कुछ एक्सटिंक्ट, कुछ इसमें से एक्सटिंक्ट होंगे जो है, उसमें से बहुत सारे क्या क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, बहुत सारे खत्म हो जाएंगे. तो उनके क्राइटेरिया को हम इम्पटी करना पड़ता है. ठीक है, तो ये आई होप आप कर लेंगे कॉपी में. अपने लैंग्वेज में ही करना, प्रेशर नहीं है, बोर्ड नहीं है. ठीक है, इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे. मैंने बोला था 11 सिर्फ नीट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
एग्जाम में 60% क्वेश्चन आपके 11 से पूछते हैं। कब? नीट का जब आप एग्जाम देंगे, कोई बड़ा एग्जाम देंगे, ठीक है। आप 11th में हो, ये तो है वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर की जो सोचेगा वही आगे चल के डोमिनेट करने वाला है। क्लियर है ना? डोमिनेट वो करेगा जो फ्यूचर की सोचेगा। क्लियर है ना? हम आगे आते हैं, नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लिसन, सब लोग ध्यान सुनेंगे। वाई आर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चेंजिंग नाउ एंड देन, इट इज क्लियर, ये हो गया है। अब आगे लिखो कॉपी में क्लासिफिकेशन, लिखो कॉपी में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, classification is also known as biological classification. Our next topic is classification. It is also known as biological classification. Biological classification. Keep in mind, classification is general term. पीयूष आप हैंड डाउन भी कर सकते हैं, ऑप्शन है उसमें। जूम ऐप पे हैंड डाउन के भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हैंड रेज है, इसका मतलब हैंड डाउन भी। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन इज द टर्म ऑफ इंग्लिश, नॉट अ बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन इज द टर्म ऑफ इंग्लिश, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म। व्हेन यू पुट द वर्ड बायोलॉजिकल बिफोर द क्लासिफिकेशन, you will have a biological term, that will be the biological classification, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मेकिंग क्लास और मेकिंग ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मेकिंग क्लास, लिसन केयरफुली, क्लासिफिकेशन मीन्स मेकिंग क्लास एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स, कोई भी बताए, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? क्लासिफिकेशन मीन्स मेकिंग क्लास और मेकिंग ग्रुप। दिस इज आल्सो नोन एज मेकिंग ग्रुप। अब ये टाइप करके बताओ, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐड कर दे उसमें तो इसको क्या बोलेंगे? टाइप करके बोलो भाई। चलो हम ही सुना देते हैं, बाकी लोग। इफ यू हैव वर्ड क्लासिफिकेशन, इट मीन्स, अगर नहीं जानता, हाँ, मेकिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन, क्लास सबका सही है, वेरी गुड। क्लासिफिकेशन मीन्स मेकिंग क्लास और मेकिंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव चॉक, देखो ये व्हाइट चॉक है, ये कौन सा चॉक है? येलो चॉक है, और ये क्या है? रेड चॉक है, ठीक है। चॉक के कलर के बेस पे हमारे पास 3 कलर का चॉक है, ठीक है। इसके साइज, शेप, डायमीटर के बेस पे भी तो हम क्लास बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके राइटिंग क्राइटेरिया के बेस पे भी तो क्लास बना सकते हैं कि भाई किसी से मोटा चल रहा है, किसी से पतला चल रहा है। ऐसे आपके पास पेन होगा, पेन का एक ही काम है लिखना, ऐसे लिविंग बीइंग का एक ही काम है लाइफ फिनोमिनन को शो करना। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया बनाते हैं तो आपके पास पेन की तमाम कंपनी है, कोई रेनॉल्ड है, कोई लिंक है, कोई ग्लाइसर है, ठीक है, तो कोई आपका जो है विन गाइड का पेन है। तो अब तमाम पेन है, तमाम तरह के क्राइटेरिया आप डिसाइड कर लेंगे कंपनी के बेस पे, ठीक है। बट हियर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स मेकिंग क्लास ऑफ लिविंग बीइंग और मेकिंग ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग। ध्यान से सुनो सब लोग, अभी टाइम आउट होने वाला है, 40 मिनट से ज्यादा का जूम हमको टाइम नहीं देता है, कहता है जूम कि आप 40 मिनट से ज्यादा पढ़ा नहीं सकते। तो जैसे ही कटेगा हम 5 मिनट के लिए वापस आएंगे, चीजों को फिर से इलेबोरेट करेंगे और फिर उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम आएंगे, सिर्फ उन चीजों को क्लियर करने के लिए। अचानक से पढ़ते हुए कट जाए, नो डाउट वो जूम ने काटा हुआ है, ठीक है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मेकिंग द क्लास ऑफ लिविंग बीइंग और मेकिंग द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे आपके पास कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एलिफेंट, लायन, एंट, ठीक है, काऊ, बफेलो, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है, सब लोग ध्यान सुनेंगे, हम कितने क्राइटेरिया बना सकते हैं इनको ग्रुप बनाने के लिए। तो हम अभी फिलहाल 2 क्राइटेरिया बनाना चाहे तो बना सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है?
हर्बीवर्स का और दूसरा क्या है कार्निवर्स का। जब हम हर्बीवर्स बनाएंगे तो उसमें एलिफेंट को पुट कर देंगे, काऊ को पुट कर देंगे, बफेलो को पुट कर देंगे, ठीक है, और कार्निवर्स में बाकी को प्लेस कर देंगे। अगर हम दूसरा क्राइटेरिया बनाए तो इसमें हम बोलेंगे एनिमल दैट कैन फीड मिल्क टू देयर चाइल्ड, इट मींस मैमल एंड नॉन मैमल। तो इसमें मैमल में लायन, टाइगर, एलिफेंट सब एक ग्रुप में आ जाएंगे और एंट, फ्रॉग ये सब दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। फिर आप क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं शेप एंड साइज के बेस पे, यानी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, जिएंट एंड स्मॉल। तो स्मॉल वाले में कौन आ जाएगा, फ्रॉग और एंट आ जाएंगे, बाकी सब जिएंट में आ जाएंगे। सो the fixed criteria is not decided for classification, but keep in mind when we are going to discuss about biological classification, ऑडियो आ रहा है सबको, ऑडियो वीडियो आ रहा है सबको, हैंड रेज करके बताओ भाई। वेरी गुड। when we are discussing about the biological classification, when we are going to discuss about the biological classification, then their criteria is fixed, but when you are going to classify the object in your home, keep in mind object at your home or school, then their criteria is not fixed. So the criteria of living being, criteria of biological classification is actually fixed. So keep in mind, the definition is over, word meaning is over. Now next point is related to biological classification is the advantage of biological classification. तो लिख लो कॉपी में advantage of biological classification, हो जाए तो बताना हेडिंग advantage of biological classification, advantages of biological classification, advantages of biological classification. Very good. Advantage of biological classification will discuss tomorrow, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कब डिस्कस करेंगे, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज का टाइम हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है। सो आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th इज ओवर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख के रेडी रखो या मोबाइल में कहीं टाइप करके रेडी रखो, उसको अगले दिन जब मैं पूछूं तो उसको तुरंत ही टाइप पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में, मेरे स्क्रीन पे वो चीजें दिखेगी, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मीटिंग में एंड कर रहा हूं और कल हम सेम टाइम में यानी कि 10:25 से 11:10 तक बायोलॉजी के न्यू